We must welcome the future, remembering that soon it will be the past. And we must respect the past, remembering that it was once all that was humanly possible. A very warm good evening to one and all present here. I, Vansh, along with Vartika, take immense pleasure to welcome you all today. We proudly introduce our school band for the first time this year. As you just witnessed, their marvelous coordination and rhythmic presentation, for which they have tirelessly practiced for the last 1 month. They deserve our appreciation for putting in their heart and soul into the performance. With great joy, we welcome respected Chairman, Himalaya Education Society, Shri Bhumesh Agarwal ji, Mrs. Rita Agarwal ji, Pro Vice Chairman Sir, Delhi Public School Haldwani, Mr. Vivek Agarwal, Mrs. Shreyal Agarwal, members of the management, all dignitaries, our beloved Principal Ma'am, Ms. Ranjana Shahi, and our dear parents. Thank you, Vansh. Isn't it wonderful to meet again this year? As we, the students of Delhi Public School Haldwani, celebrate yet another annual function, the celebration of our culture and national pride. You know, this is just what I felt as I looked around and walked towards the stage some time ago. I agree. Each area along the path had a story to tell, and I am sure our parents and guests would also have felt the same, and are now eager to know how the evening unfolds. Our relationship with light is as old as our beginnings. We have always been drawn towards light. It stands for auspiciousness, prosperity, and abundance. Light brings brightness. In doing so, it dispels darkness, and we begin to see things clearly. Om Astoma Sadgamaya, Tamsoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya, Om Shanti, Shanti, Shanti. I have been explained the significance of burning of a lamp and would like to share the same with you all. The oil used to light the lamp represents negative human tendencies. The wick symbolizes the ego. The flame, which always looks up, represents spiritual knowledge that evolves towards a higher consciousness. Knowledge drains the oil or innate tendencies as it burns and destroys the wick. Lord Ganesha is considered the destroyer of all obstacles. Shuklambar dharam Vishnuam Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vandananam Dhyayet Sarva Vignop Shantai. We meditate to Lord Ganesha, who is grey in color like that of ash, who has 4 arms, who has a bright face that depicts inner calm and happiness, and who can destroy all obstacles in our spiritual and worldly paths. So, let us initiate a celestial and symphonic evening, an evening full of allure and amazement with lighting of the lamp. We would like to request Principal Ma'am to escort the members of the management and dignitaries for lighting of the lamp.
We all are aware about how in our culture the elders play a great role in molding the character of the future generations. So, let's initiate today's mega event by solemnly remembering the founder member of our school, late Hazarilal Agarwalji, fondly remembered as Baba. Tonight, I salute not the sun. Tonight, I salute not the stars. Tonight, I laud a hero. Tonight, I extol a legend. I request Shreyal ma'am to kindly come up on stage to pay homage to Baba and share more about him with all of us. Good evening, everyone. We have all gathered here to celebrate our fourth annual extravaganza, and I am honored and elated to be here to speak about our founding chairman and my grandfather, Sri Hazarilal Agarwalji. He was a simple, self-disciplined man with strong moral values. His act of valuing and appreciating every individual made him connect with everyone just as easily and left an everlasting imprint on their minds. He instilled in us the wisdom to fearlessly follow our dreams, but at the right cost. It is his ideals that run through every fabric of our being. His strong moral standards, work ethics, and disciplined lifestyle have been our guiding principles through the entire journey of DPS and our life. He was a multifaceted personality, a visionary. We miss him and feel his absence of his kind, motivating words at every step of our life. But we believe that wherever he is watching over us and blessing us. Our tribute and Shraddhanjali to him would be to work hard every day and make him proud. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing more about Baba with all of us. Saraswati Namastubhyam Varde Kam Rupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Me Sada। माँ सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी कहा गया है। आज के इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी ज्ञान की देवी को नमन करें और हमारे नन्हे कलाकारों के द्वारा करे जा रहे इस अनोखे प्रयत्न का आनंद उठाएं।
तुझसे। तू स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार देवा, ये शार देवा। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरा का हमको भी अधिकार देवा, ये शार देवा, ये शार देवा। अज्ञानता से हमें तार देवा, ये शार देवा। That was so amazing. Let us applaud our young performers for their astonishing coordination, as this was their first attempt at live singing and dancing. They deserve a huge round of applause. As we proceed into the evening, we have another set of young and enthusiastic performers who are eager to present the power of education and its potential to build a strong and humane nation. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. So, let us welcome our young brigade spreading their wings and soaring high in the sky with the power of education, making ourselves progressive and self-reliant, which, as we say in our language, Atmanirbhar. We strongly believe in them as they will contribute to build a stronger India in future as they strengthen their wings. कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम
हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश, जय हिंद, जय हिंद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह जिंदे बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। अल्लाह जिंदे बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा। घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। कहे ये मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला है अब हमने रेत जल। दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ। घिर आए बदरा, घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक तुझे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है।
आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है। आज अपना ताजमहल हुनर की पहचान है। जाना जग जगदीश से, पौधों में भी तो जान है। रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे, हम विदेशी भगाने लगे। खोजों का है ये सिलसिला, जो चांद पे पानी मिला। यूएसबी भी हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें, दिया डीएनए का राज हमें। देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। अति सुंदर और भावपूर्ण पेशकश थी यह। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार और इन नन्हे कलाकारों को सराहें। भारत को कला का गढ़ माना गया है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन हमारी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा है। इस संस्कृति के धनी राष्ट्र ने विश्व को एक अनमोल भेंट प्रदान की, जिसके द्वारा आज हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला है। हमारे वेदों और पुराणों में योग का उल्लेख किया गया है, जिसे आज संपूर्ण विश्व ने हर तरह से अपनाया है। तो अब समय है कुछ आसनों को सीखने और स्वस्थ रहने का। चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये
नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तुझे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, बुरा है ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, झांकी कहीं गुनगीत है, भाषा कहीं सुरगीत है। कश्मीर से मद्रास तक, कह तो सभी हम गीत है, आवाज तो हम ये दिए जाना। वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन
वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, मेरे वतन, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। That was surely a stunning performance by our young students. What you do, what each of us does, has an effect on the state, the country, the nation, and the world. In today's time, the youth must remember the history, the struggles of the past, and the people who gave their all to gift us a free nation. We are fortunate to breathe and live in a free nation. Each one of us will have to pledge our sincerity to let our country move ahead with its head held high.
From a golden bird to a caged one, and then beginning the process of learning to fly again, India rose to heights in various fields. We live in a nation of different creeds, convictions, ethics, and background. We pray to you and ask your blessings to help it develop and rise further as a harmonious nation. Let us pay our musical tribute to our nation with our junior and senior school choir. तेरी माटी से मैं हूँ बना, तेरे पानी से मैं सींचा गया हूँ, चाहे आगे लाखों खड़े आजादी के लिए मिलके लड़े, मेरी नस नस बहे है वतन, मेरी नस नस बहे है वतन, मेरा सारा तुझ पे वारा, मेरी नस नस बहे है वतन, मेरी नस नस बहे है वतन, मेरा सारा तुझ पे वारा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई गम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, मैं धरती की वाणी की ना और सुधाने देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी में मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई गम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तेरा रहेगा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या मुक्त शहादत दे दे, मंजूर बने जो भी तुझे, दुनिया की करे मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ ओ ओ
function of education is to teach one to think intensively and critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Dear parents, each passing year adds growth and development to an institution. Delhi Public School Haldwani has always focused on creating self-confident and innovative students. We now invite our principal ma'am, Ms. Ranjana Shahi, to please come on stage and share the school report with you all. A very good evening to one and all. Chairman, Himalaya Education Society, Mr. Bhumesh Agarwalji, Pro Vice Chairman, Mr. Vivek Agarwal, members of management, dignitaries, my fellow principals, parents, teachers, and students. It gives me immense pleasure to welcome you to DPS Haldwani for a fourth annual function. I'm extremely honored to have the opportunity to present to you today a meticulously crafted evening for all of you to witness the talent, effort, and diligence of our students and staff. It is an opportunity for you, dear parents and honored guests, to appraise the DPS community, which is synonymous with high ideals and high benchmarks. This year, India completed 75 years as an independent nation. We at DPS Haldwani will give you a glimpse of the dark period of colonial rule and the pride in presenting the bravery of our freedom fighters and glorious years of our nation's journey post the departure of our colonists. I would also like to take a moment to bring to light the progress our country has made in the sector of education over the course of 7 decades after independence. The education system of India has evolved gradually yet phenomenally. Currently, the education system in India is the strongest and largest in the world, hosting more than 315 million students. Albert Einstein once said, "Education is not the learning of facts, but training the mind to think." We at DPS Haldwani believe in equipping a child with the appropriate tools to assess and encourage cognitive understanding of situations that will culminate in an all-inclusive growth of the child's mind and ability to deal with the real-life tribulations. With the collective effort of the whole school staff, children and parents, we are navigating yet another academic year successfully through an ever-changing global landscape. We have had a significant year so far, and the school has grown from strength to strength despite various challenges. The school has escalated to great horizons of success. I'm proud to say it is one of the most sought-after institutions of the city. We have crossed some important milestones in the past year, and today we celebrate all the hard work that our students and staff have put in throughout this year. Education is an investment for the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today, unquote. The beautiful journey of the blooming buds in a few pages. We sought the blessings of the Almighty for the success of the new academic session with a Havan, and the teachers had a blessing ceremony for the students. The young dipsites were provided with one experience of co-curricular fun activities when they were exposed to a 2-day adventure camp under the program Utsav in the school campus. An orientation of parents of grade pre-nursery to 8 was organized on April 9 to familiarize the parents with the school system and its various policies.
Morning assembly undoubtedly holds the numero uno position out of all the routine activities in the school. Probably it is the first platform which is provided to the young minds, boosting public speaking and imbibing team spirit in their nascent minds. Special days have been celebrated via morning assembly and various activities. All the festivals, some important days like Harela, International Tigers Day, Heritage Day, Earth Day, just to name a few. We celebrated National Parents' Day on July 23rd, Kargil Vijay Divas on July 23rd, saluting our Kargil heroes. National Conservation Day, July 28th. I'm just naming a few of the days, important days that we have observed or celebrated. Sports teach you character. It teaches you to play by the rules. It teaches you to know what it feels like to win and lose. It teaches you about life. Quote by Billie Jean King. School organize inter-house football, basketball and kho-kho tournaments to develop harmony and healthy environment amongst the students. Grandparents' Day was celebrated to cherish the bond of children with their grandparents by students of pre-primary wing on October 1st. Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. It is rightly said, the right mix of creativity along with curriculum helps students to be innovative and also encourages them to learn new things. Work education forms an integral and indispensable part of the curriculum. It provides the basis of building up different skills in a child. The work education theme for the year 2022-23 is Art Unlimited. Students have been enjoying various activities and enthusiastically participating in these activities. I'll just name a few of them. Marble painting, paper crumbling activities, finger impression, where am I, framework of bones. You know, the names sound very exotic here. On the occasion of World Heritage Day, poster making competition was organized with the theme Heritage and Climate. To spread awareness about conserving Earth, Earth Day was celebrated with great splendor on April 22nd. World Book and Copyright Day on April 23rd. National Handloom Day, we are talking about Swadeshi and Atmanirbhar, was celebrated on August 7 to commemorate the Swadeshi movement and appreciate the effort of handloom weavers. Libraries are a treasure trove, and here we have a lot of activities to build awareness and interest for reading. The book fairs are held. There is an exposure to students via the Scholastic Book Program. Har Ghar Tiranga. This was celebrated on August 13 when my senior students took a rally from school to the nearest colony, that is Olivia, and there the children marched as well as handed over tricolors to the residents there, a moment of great pride for my children. Healthy competition motivates students and drives them to put forth their best effort. Competition encourages students to work harder and keep learning. When students compete with each other, they become more inquisitive and learn to work with others. We've organized different competitions like shloka recitation, bookmark, diya toran making, calligraphy, just a minute, English and Hindi debate. So activity helps to beat the summer heat as well as hone their swimming skills. They learn beyond academics and definitely give their moms a much needed break. A big milestone for the school when the CBSE Class 10 2022 results were declared. Our highest percentage was 99.2, backed by Garimesh Mudhela, followed by Somil Tiwari with 98.8 and Anshika Tiwari 97.2. 40% of the total strength scored 90% and above. As highest marks per subject, centum was scored in English and Science, 99 in Social Science, IT and Math, and 98 in Hindi.
I think that deserves a huge round of applause. My students have done us proud. And let me add something more. We were made an examination center for term 2. Usually CBSE has a policy of at least having 3 years to 5 years of class 10 and 12 batches before they assign you as an examination center. But I'm proud to say we were made an examination center for term 2 examinations. Our day boarding program, where students are receiving opportunities for personality development, communication skills, learning different crafts, Olympiad practice, swimming or horse riding, yoga, sports, art and craft, music, dance, and much more. Leadership is the capacity to translate vision into reality. On July 15, we unveiled our new school cabinet for the academic session 2022-23 by organizing the investiture ceremony. Badges were pinned for the different council members in the presence of the proud parents, teachers, and students. The cabinet of the school took the solemn oath. The DPS tradition of having scholar badge. Usually schools have a prize distribution ceremony. We do have a principal award which is going to be followed, but the DPS tradition is of a scholar badge where children scoring above 85% are presented with a scholar badge. We had the same, this is for class 6 upwards, as well as for co-scholastic excellence. More than 50 students who met the criteria were given the scholar badge. Our Sanstapna Divas or Foundation Day was celebrated on September 3rd with the Havan attended by senior students. Mind you, we had a half-yearly exam starting from September 7th. So we let go of September 5 celebrations and we had the Teachers' Day celebrated on September 3rd itself. We saved one academic day for ourselves. Dharohar, the much anticipated cultural extravaganza. The third edition of Dharohar on the theme of Kesaria, Rajasthan was celebrated on 16th October. We tried something new this time. We had a Diwali Mela. And parents, I think you all are witness to the fact that it was a fantabulous success. Am I right? Was the Dharohar a success or not? Because I'm not hearing the claps which should be there for my students. This is not for me, this is for my students. Our student workshops, just to name a few, to enlighten the students about the importance of good health, personal hygiene, and primarily the concerns associated with teenagers and with adolescents, a special health awareness program was conducted on April 30th in the school premises by a renowned panel of doctors. July 2nd and 3rd gave us a very first Haldwani Literature Fest, another proud moment for the school to be associated with it. Eminent literary personalities from across the country graced the occasion for 2 days. It was indeed an experience for all, students as well as teachers, which brought them closer to literature. We held a career fest for our students on 24th July. More than 27 universities from India and abroad were here to counsel and inform our students. July 29 and August 2 led to us organizing eye health awareness and cancer awareness programs for the DIP sites. A 3-day Scouts and Guides program from August 4 to August 6 saw the children learning the different skills as Scouts and Guides. 200 students participated, 100 boys and 100 girls. Our students participated in Bharat Ko Jano quiz competition as well as inter-school group singing competition by Bharat Vikas Parishad. An extremely informative and fruitful session on memory and attention booster for grades 6 to 8 and a session on cyber security and social media for grade 9 and 12 was conducted in collaboration with Extra Marks Education. An extraordinary event of Kathakali was organized for our students
in collaboration with Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture, that is SPICMACAY, renowned Kathakali artist Kalamandalam Amaljeet and his team performed. At DPS, we take teacher training very seriously and we know it is a never-ending process. SWOT analysis was done to bring out everybody's perception on the table and to work towards gaining strengths and converting opportunities. Teachers continuously get opportunities to attend CBSC, DPS societies, private collaborators like Nature Nurture for pre-primary and other as well as in-house trainings. To name a few, we have subject-related workshops for the senior teachers, pedagogy-oriented, new NCF, implementation of NEP 2020, stress management, happy classrooms, how to frame the right questions, so on and so forth. I'm coming to the accolades now. If the mind is intensely eager, everything can be accomplished. Mountains can be crumbled into atoms. Swami Vivekananda. Manasvi stood first in under 10 girls category in 16 Uttarakhand State Open Chess Championship. Divyansh Matyali stood second in under 10 boys category in the same tournament. Parents, these are all outside school tournaments I'm telling you about. Kirola won 1 gold, 2 silver medals and 1 bronze medal in Uttarakhand State Championship 2022 in badminton singles under 13 and 15. Yatharth Shah bagged the second position under 15 boys badminton tournament 2022. Arush Tandon and Dash Tandon represented their school in shooting and won silver and gold respectively. Our swimming champs, they brought laurels to the school. On October 18 at Indira Gandhi International Complex, Golapar, Haldwani, under the age of 10, 12, 14 and 17, our students, 14 of them participated and they bagged 3 gold medals, 3 silver and 4 bronze in freestyle, 1 gold, 2 silver and 1 bronze medal in breaststroke. Shivam Dapola made us proud by getting selected for next level. Basketball, girls have done extremely well, especially Vaishnavi Kholia, who's actually gone to play nationals. Not a small feat. We had the inter-school live singing and folk dance competition under the Dev Bhumi Sahodaya School Complex group. We were the host. We won the first prize when 14 different schools had participated, followed by St. Teresa in second place, and third was attained by Saraswati Academy. In yoga, Dipsites received first position in Uttarakhand State Sub-Junior Yoga Championship, organized by Uttarakhand Yoga Culture Association. 30 medals in all were bagged by my students. And you saw the program today. Our inter-DPS quiz competition was held. These are held in zones. Our school topped the table in the preliminary round in the senior category and were placed second behind DPS Noida in the zonal final. You know where DPS Noida is. It's a core school. We are satellite school. We managed to secure the second position. In December, we will be hosting the Inter-School Basketball Championship, both boys and girls, senior and junior category under the PSA umbrella. Very excited to see the excitement unfold on the brand new basketball court. Our inter-school Nukkad Natak under the Dev Bhumi Sahodaya complex will also be held in the month of December. We will be hosting it. Pal College of Technology and Management had organized Hindustan Teaching Award 2022, Excellence in School Teaching. 3 of my teachers got as favorite teachers. The students had voted Ms. Geeta Rawat, Mr. Ankit Khanna and Mr. K.C. Pathak in different categories. MIT Kumaon, in collaboration with Amar Ujala, had organized the State Award in the field of education. I had the honor of receiving one of the Principal of the Year Award, Haldwani District, Nainital. I think I've taken quite a lot of it, so just in conclusion, please bear with me. To achieve success in the education sector, one has to have the winning combination
of a benevolent patron, committed faculty, diligent and responsive students, steadfast administrative staff, dynamic curriculum, a pool of resources, and of course, the unwavering support and cooperation of the parents. At DPS, we create an environment where children have the confidence to learn and the freedom to fail, where they can discover what really matters to them and realize their potential. We aim to impart socially relevant knowledge that in turn adds dynamism to society. As stated at the outset, education should facilitate students and provide socially relevant knowledge. I strongly believe that education must cater to the holistic development of the children. Their happiness and health are paramount. Our children will only blossom and learn in an environment where we never diminish the dignity of a child. The school's endeavor and dream is to make a positive difference to the lives we touch. I assure the parents who have entrusted their children to us, they are in good and safe hands. The warm, friendly, and stimulating environment will be a good home away from home for your children. Before I sign off, I would like to take the opportunity to express my gratitude towards the entire DPS society, whose vision inspires all stakeholders to work with passion and a commitment. We value your guidance, encouragement, and support. I would like to thank you, dear parents, for extending your continuous support and being invested in our community. I would like to conclude now with a quote by Martin Luther King Jr., and I quote, "The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education." Thank you and have a great evening ahead. Thank you, ma'am, for the detailed and explicit account of our school. Excellence is the result of caring more than others think is wise, risking more than others think is safe, dreaming more than others think is practical, and expecting more than others think is possible. It is the time to acknowledge the talent of our pioneer students who have shown immense perseverance, constancy, and dedication towards studies as well as co-curricular activities. This is the time to felicitate and motivate these versatile young students who are the building blocks of our nation. Now, I would like to call our Pro Vice Chairman, Sir Mr. Vivek Agarwal, for the award ceremony. Here is the list of all the winners. Shivansh Mishra from 1A. Let's keep clapping for all the winners.
Samar Verma from 1B. Navya Tiwari from 1C. Sanvi Sachdeva from 2A. Maulik Gupta from 2B. Kashni Padalia from 2C. Prananjay Singh Rana from 3A. Let us all clap for the winners. Shivansh Tiwari from 3B. Akshita Urial from 3C. Yuvan Ratela from 4A. Anika Joshi from 4B. Rahini Bhatt from 4C. Divyansh Matiali from 5A. Kasni Dubey from 5B. Lavanya Pandey from 5C. Arna Tiwari from 6A. Shu Kantpal from 6B. Let us all appreciate our winners. So please give a huge round of applause. Shivashi Suyal from 6C. Garvit Pandey from 7A.
Vanchika Duvedi from 7B. Ayush Negi from 7C. Arna Best from 8A. Shubhida Bansal from 8B. Hitisha Taragi from 8C. Nishika Papne from 9A. Bhumi Shekhawat from 9B. Aryadha Bhatt from 9C. Adi Bansal from 10A. Prithvi Singh Kanyal from 10B. Ahana Prasad from 10C. Saumil Tiwari from 11A. Shubham Matholia from 11B. Soni Prasad from 11C. Himang Joshi from 12A. Samriddhi Saraswat from 12B. Shriya Pandey from 12C. Can we have Himang Joshi on the stage? DPS follows a tradition of honoring its outstanding students in academics and co-curricular activities. Initiating this tradition, we have two proud winners with us today. Miss Vaishnavi Kholia is being presented with red blazer for her participation in national level basketball team, and Master Himang Joshi with blue blazer for his consistency in academic excellence.
We congratulate and appreciate the efforts of our winners today, as well as their parents. We hope to see more and more of our students getting motivated and striving to set and achieve new goals in life. जाति तेरी, रंग मेरा, बोली उसकी, पानी सबका, थोड़ा भारत तेरा, थोड़ा भारत मेरा। देशभक्ति एक अद्भुत एहसास है जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जो अपने देश से बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। देश के प्रति अपार प्यार और सम्मान की भावना ही देशभक्ति है। एक सच्चा देशभक्त वही कहलाता है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे और इसके विकास के बारे में सोचे। वहीं एक सच्चा देशभक्त न केवल अपने देश के विकास एवं उसके निर्माण की दिशा में काम करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को देश के लिए काम करने हेतु प्रेरित करता है। देवों की नगरी, महापुरुषों की धरा, योग, विज्ञान और आयुर्वेद से भरा, पूरे विश्व का गुरु जो कि 3 रंगों से सजा, जहाँ विविधता में भी है एकता का पता, सिमटा है पूरा संसार जिसमें वो है भारत देश मेरा। हमारे देश का बहुत ही विस्तृत इतिहास रहा है। इसमें बहुत सी सुनी, अनसुनी, जानी, अनजानी घटनाएं हैं जिन्होंने आज के प्रगतिशील भारत की नींव रखी है। आज हम सभी अपने देश के स्वतंत्रता के 75 सालों में की गई उपलब्धियों को भारत के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। इसी पर इन सारी घटनाओं का नाट्य रूपांतरण लेकर आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। वाह, आज कितना सुहाना मौसम है। हाँ जेठा, आज वॉक करने में भी मजा आ रहा है। हाँ, चलो थोड़ी कसरत भी कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, तुम्हें कुछ पता है? हाँ हाँ, शर्मा जी के बारे में। और बहन, क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें? हमें भी तो बताओ। तो सुनो। दादू, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, देखो मैं यूं भागी। बस बस बेटा, अब और नहीं। अब मेरी उम्र हो चुकी है। चलो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं। क्या दादू, आप भी इतनी जल्दी थक जाते हो? चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप मेरे साथ खेलोगे। ठीक है बेटा। दादू दादू, आपको पता है आज हमारी मैम हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता रही थी, लेकिन छुट्टी हो गई। लेकिन आज इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई? टीचर ने बताया शायद किसी स्टूडेंट के पापा शहीद हो गए, इसीलिए। क्या शहीद हो गए? ओम शांति, ओम शांति। दादू दादू, मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताओ ना। स्वतंत्रता सेनानी? मुझे आज भी वह पूरी कहानी याद है जो मुझे मेरे पिताजी सुनाया करते थे जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कदम रखा था, वो भी एक व्यापारी के रूप में। वो लाल कोट, वो काले चमड़े के जूते की आवाज़, वो अनजानी सी भाषा,
अरे क्या बातें चल रही हैं दादा और बच्चों के बीच? कुछ नहीं, बस हमारे भारत की बातें। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ। रुको रुको रुको। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? चलो एक काम करते, एक रेस करते। जो वहां से वहां तक सबसे पहले पहुंचा वो हीरो, और जो हारा वो जीरो। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? 1 2 3। मम्मी। अरे अरे रुको, वो गिर गया। अरे ये तो जीरो बन गया। जीरो जीरो। अरे क्या हुआ, कहीं लगी क्या? आंटी ये तो जीरो है, जीरो कभी भी गिर जाता है। अरे कैसे फ्रेंड्स हो तुम लोग? उसे चोट लगी है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। अब उसे उठाओ तो सही। अरे अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई गिर गया है और सब उसे जीरो जीरो बुला रहे हैं। हारने वाले को तो सब जीरो ही बुलाते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती। अरे बच्चों, ऐसा नहीं है। जीरो तो एक मैजिकल नंबर है। जो किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और वही जीरो किसी नंबर के पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। अच्छा दादू। और तुम्हें पता है जीरो की खोज कहाँ हुई थी? कहाँ दादू? यहीं हमारे भारत में। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। अंकल क्या गाया है? हाँ, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे सचमुच हिंदुस्तान को जाना हो। चलो चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ चलो। हाँ, इन्हें कल स्कूल भी तो जाना है। छी अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? आपके हाथ डर्टी हो जाएंगे, फिर अम्मा आपको भी डांटेगी। डर्टी? ये मेरे देश की मिट्टी है। आह, इसकी सौंधी सौंधी खुशबू। बू, क्या कर रहा है चक्षण? तूने हमें डरा दिया। अरे चल डरपोक, तू तो ऐसे ही डर जाता है। अरे दादू, आपके हाथ इतने गंदे कैसे हो गए? जानते हो इस मिट्टी के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है? क्या? मिट्टी के लिए बलिदान? हाँ, मिट्टी के लिए बलिदान। तुम्हारी ही उम्र का एक छोटा सा बच्चा था जिसने छोटी सी ही उम्र में अपना मन बना लिया था कि वह अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरेगा जिससे गुलामी की जंजीरें टूट जाए। दादू, आप किसकी बात कर रहे हो? आओ तुम्हें बताते हैं कि वो बच्चा कौन है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू।
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Arrest him. Long live revolution, down with imperialism. मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अब पता चला वो बच्चा कौन था? हाँ अंकल, शहीद भगत सिंह। अरे बच्चों आ जाओ, काफी देर हो चुकी है, अब घर भी तो जाना है। आ गए आप सब? चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, खाना तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। ओके। बेटा चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। ओके मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट। कस के जूता कस के बेल्ट, ठोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे
रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। यहाँ साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा। On Gandhiji. Have you all read it? No, ma'am. Yes, ma'am. Why? Ma'am, I was absent yesterday as I was not well. And what about you? Ma'am, I went to my uncle's place as my aunt was in hospital. Every time you have one or another excuse to give. Anyways, sit down both of you. And now, who will tell me what is the full name of Gandhiji? Ma'am. Dipanshi? Ma'am, Mohandas Karamchand Gandhi ji. Very good. And now, who will tell me what is the birthplace of Gandhiji? Ma'am. Rajveer. Ma'am, Porbandar in Gujarat. Very good. And what is the birth date of Gandhiji? Ma'am. Ashwin? 2 October. Very nice. Now, who will tell me what he is famous for? Ma'am, he is known as the father of our nation. But why he is known as the father of our nation? Ma'am. Medhavi? Ma'am, because it was he who got freedom for us. बिल्कुल सही। महात्मा गांधी हमारे देश की वो शख्सियत हैं जिसने सत्य और अहिंसा यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के पथ पर चलकर अंग्रेजी हुकूमत से भारतवर्ष को आजादी दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आओ, आज मैं आपको एक छोटे बच्चे मोहन के महात्मा गांधी बनने तक के सफर को बताती हूँ।
मार्च करेंगे और वहां पर जाकर नमक बनाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जग धग 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 कृता तिक धाग न धग दिग न कत्र तिक धाग तिक कत धाग तिक कत कत कतिक धग तिक धग तिक धा कत तदा कतिक धग तिक धग तिक धा कत तदा कतिक धग तिक धग तिक धा कत तदा। मैंने सरकारी हुक्म को नहीं माना है। मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूँ। धान दिकिट तकिट दिकिट दिक्क दान दगिन दा धान दिकिट तकिट दिकिट दिक्क दान दगिन दा तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक तानो 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 ग्रंदगड़ दागड़ दागड़ दान धाते धा धाड़ धाते धाड़ धाते धा ग्रंदगड़ दागड़ दागड़ दान धाते धा धाड़ धाड़ धाते धाड़ धाड़ धाते धा ग्रंदगड़ दागड़ दागड़ दान धाते धा नंदर अंदर अंदर अंदर। From Singapore Radio wants to call Mahatma Gandhi as the father of nation of India. अरे अरे ये देखो, मेरे नोट में भी गांधी जी की फोटो बनी है। एक मिनट रुक। हाँ हाँ, मेरे नोट में भी गांधी जी की फोटो बनी है। हाँ हाँ, मेरे नोट में भी गांधी जी की फोटो है। Students, quiet. You all are absolutely right. You only said earlier that Gandhi ji is known as a father of the nation, and that's why each and every currency note in India bears the photo of Gandhi ji. Shruti! आ गए तुम दोनों? चलो फटाफट से चेंज कर लो, पापा भी आते ही होंगे। ओके मम्मा। आ गए आप? बड़ी जल्दी आ रहे हैं। भूल गए कि आज बाहर भी जाना है? ये पापा आ गए। ये आज तो हम मूवी देखने जाएंगे। ना बेटा, आज नहीं। आज मुझे ऑफिस का बहुत काम मिला है। पापा आप हमेशा ऐसे ही करते हो। हमें नहीं करनी आपसे बात। नेक्स्ट टाइम पक्का ले जाऊंगा। आप बिना हद करते हैं। बच्चों को कब से प्रॉमिस कर रखा है। अरे नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा। तो मेरे लिए एक कप चाय तो ला दो। हाँ हाँ, आपको तो बस मैं ही दिखती हूँ ना। मैं ही तो घर में सबसे बड़ी खाली हूँ। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी चाय ला दो, कभी कपड़े तय कर दो, कभी सामान ला दो। लेकिन जब हम आपसे कुछ कहते तो आपको तो अपना ऑफिस का काम याद आ जाता है ना। मेरी और बच्चों की तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे मेरी झांसी की रानी, अब बस भी करो। एक कप चाय ही तो मांगी थी, कौन सा तुम्हारा पूरा साम्राज्य मांग लिया। हाँ हाँ, वैसे भी तुमने कितनी चीजें दिलाई है ना जो छीन लोगे। अरे हाँ हाँ, तुम मेरे एक कप चाय तो ला दो। हाँ हाँ, लाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मम्मा, ये झांसी की रानी कौन है? बेटा, झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही ब्रिटिश साम्राज्य से मोर्चा लिया, लेकिन अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी में कदम तक नहीं रखने दिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में इनके बलिदान के लिए जाना जाता है।
और इन्होंने काफी कम उम्र में ही एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई ही भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1828 से, जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था और माँ का नाम भागीरथी बाई। और दोस्तों, बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम इनके माता पिता ने मणिकर्णिका रखा था। साथ ही इन्हें घर में मनु कहकर भी बुलाया जाता था। हालांकि जब लक्ष्मीबाई महज 4 साल की थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर आगे उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बिठूर के पेशवा ने संभाली, जिनके दरबार में लक्ष्मीबाई के पिताजी काम किया करते थे। और पेशवा ने मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। मणिकर्णिका को शुरू से ही महान लोगों और उनके अच्छे कामों के बारे में बताया गया। साथ ही दूसरी लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज्यादा आजादी भी दी गई और यही वजह थी कि मणिकर्णिका अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखती रही। और फिर 1842 में यानी कि सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से कर दी गई। और फिर शादी के बाद ही मणिकर्णिका को झांसी के अंदर सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी कहकर बुलाया करते थे। अंग्रेजों ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वे सभी झांसी को भी अपनी सल्तनत में मिलाने की कोशिशें करने लगे। जब ब्रिटिश सेना ने भी झांसी पर कब्जा करने का सोचा तब झांसी की रानी ने अपनी सेना के साथ उनका जमकर सामना किया और अंग्रेज सिपाहियों के सामने बिल्कुल न के बराबर झांसी के सैनिकों ने 2 हफ्तों तक उनका डटकर सामना किया। लेकिन अंत में उन्हें अंग्रेजों की बड़ी सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रानी अपने बेटे और कुछ मुख्य सिपाहियों को लेकर वहां से बच निकलने में कामयाब रही और फिर वहां से निकलकर वह अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे के पास कालपी नाम के जगह पर पहुंची। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का रूप तो देखने ही लायक था। दोनों हाथों में धारदार तलवार और अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए वह ब्रिटिश सैनिकों का संहार कर रही थी और इस तरह से काफी समय तक उन्होंने अंग्रेजों का जमकर सामना किया। लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ही कोटा की सराय नाम की जगह पर वह ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गई और फिर आखिरकार 29 साल की कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि दोस्तों, भले ही वह सिर्फ 29 साल ही इस दुनिया में थी, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानियां हमेशा ही अमर रही। इस मिट्टी ने मुझे जिस गौरव के साथ अपनाया है, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी। आज से मेरे लिए झांसी माँ है। सुनी कहानी थी लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। यदि आप किसी अबला पर अत्याचार किया तो मणिकर्णिका झांसी की रानी बने या ना बने, तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगी। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। कसम है इस मिट्टी की, अपनी झांसी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। खून की आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर
कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी जिसने छोटी सी उम्र में अपने पति को खो दिया। अपने पति को खो देने के बाद भी जो अपनी इस धरती को बचाने के लिए अपने नवजात बच्चे को पीठ में बांधकर अंग्रेजी सेना से लोहा लेने चल पड़ी। क्या ऐसी माँ की पीड़ा हम में से कोई समझ सकता है? जिस धरती पर गर्व के साथ खड़े हैं, उस धरती के लिए कितनी माँओं ने किस किस तरह से बलिदान दिया है। क्या हम महसूस कर पाते हैं? बताइए, क्या हम महसूस कर पाते हैं? बच्चों, तुम अंदर चलो। बस बेटा, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं। अब तो समय बदल चुका है। अब हम अंधकार भरा समय पीछे छोड़ प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। बस अब शांत हो जाओ और देखो, आज हम उन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। देखो, आज का भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अरे क्या हुआ? जल्दी करो, वहाँ नानी मामा वगैरह सब इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी, मैं तो कब से रेडी हूँ, हमेशा भैया ही लेट करते हैं। झूठे, तूने मेरी टी शर्ट छुपा दी थी। आप झूठे, तू झूठा, आप झूठे, तू झूठा, आप झूठे। चुप करो दोनों और फटाफट से बाहर चलो। अरे कहाँ हो सब? जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, हमें गांव पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं। नानी नानी, नाना जी, ये भैया आ गए। अरे सब जल्दी जल्दी आओ, हमारी कार आ गई। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। वाह, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, मजा ही आ गया। हाँ, वैसे भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में दिन में ही मजे आते हैं। देखो देखो, बारिश हो रही है। दादी, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ हरियाली है और इस हरियाली को बचाने के लिए यहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। क्या? पेड़ों से चिपक गए थे? फेविकॉल से चिपक गए थे क्या?
हाँ हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन में सबसे आगे हमारे उत्तराखंड की आम औरतें थीं, जिनमें से एक थी गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन आरंभ किया था। चिपको आंदोलन? हाँ हाँ, चिपको आंदोलन। आओ, मैं तुम सबको उसके बारे में बताती हूँ। ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो 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 गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, ऊंच ऊंच यूं हिमाल ठंडो ठंडो, यीशु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, भैया छन छेड़ा पंजार हो हो, छन बुग्याल ढालदार हो हो, भैया छन छेड़ा पंजार छन बुग्याल ढालदार, रोला पाखा बुन उजार ठंडो ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। चुचो डालियो ना काटा, तो डालियो ना काटा, दीदो डालियो ना काटा, ना काटा
चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको। पेड़ कटा खच्च से मिट्टी से निकली हाय, पेड़ कटा खच्च से मिट्टी से निकली हाय, जागर बंदे नुकुर बंदे रहन कोई उपाय। चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको। जंगलों के बीच में कुल्हाड़ा फिर गया, फूल रोया और कली का रंग गिर गया। जंगलों के बीच में कुल्हाड़ा फिर गया, फूल रोया और कली का रंग गिर गया। मैं तो साला चुप खड़ा हूँ बाद में पछताए। चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको। बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। चलो चलो, हमें भी देर हो रही है, हम चलते हैं। वाह नाना जी, मजा ही आ गया। वहाँ से आने का तो मन ही नहीं किया। मम्मी, हम वापस कब जाएंगे? जल्दी ही जाएंगे, चलो हम चलते हैं। बाय बाय बाय। चलो मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये वी वॉन द मैच, ये हम जीत गए। पापा, लेकिन ये मैच तो पुराना लग रहा है और इसमें धोनी भी नहीं है। हाँ बेटा, ये मैच पुराना 1983 का है, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था।
It's out. Yes. Couple there finally gets his just desserts. Andy Roberts falls LBW. No doubt at all in Barry Mayer's mind. हलवट जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। हलवट जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है चीर देगा, ये है देखो 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 तलवार है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान, देखो 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 तलवार है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान। मस्ती राम जाने, देखो भेजा है खुदा ने, आया है ये बदला लेने, सामने न आना जरा हट के रहना, ये है सुल्तान। माने या ना आप माने, इसकी मस्ती राम जाने, देखो भेजा है खुदा ने, आया है ये बदला लेने, सामने न आना जरा हट के रहना, ये है सामने न आना जरा हट के रहना, ये है सुल्तान। अरे कब से देख रही हूँ इन्हीं डब्बों में घुसे हुए हो। दादी बस 1 मिनट और। अरे बच्चों, दादी सही तो कह रही है। आप भी तो उतनी देर से टीवी देख रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुम दोनों फोन नीचे रखो और आप भी टीवी बंद करो। और यह लो लिस्ट, मार्केट से जाके सामान ले आओ। चलो बच्चों, मार्केट चलते हैं। पापा, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चलो चल के देखते हैं। आओ आओ, हमारे साथ आओ, आओ आओ, हमसे सीखो, आओ आओ, सबको सिखाओ, आओ आओ, हमारे साथ आओ। नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। दादा दादी नाना नानी। नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो। मम्मी पापा चाचा चाची। नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो। मौसा मौसी मामा मामी। आओ आओ नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो। अरे ओ जमूरे, यहाँ क्या हो रहा है? अरे उस्ताद, नुक्कड़ हो रहा है, नुक्कड़। नुक्कड़? नुक्कड़? क्या देखेंगे हम इस नुक्कड़ में? अरे वही मोबाइल, इंटरनेट, हमेशा की कहानी। आ जाओ, सेल लगी है, सेल। दुपट्टे की सेल, दुपट्टे की सेल, दुपट्टे की सेल। अरे सीमा, न्यू सूट ये तुमने कब खरीदा? 4 दिन पहले सेल लगी थी, 2 सूट्स एट 650 रुपीज। क्या? सेल सेल सेल। कहाँ लगी है सेल? अरे वही तुम्हारी, हमारी, हम सब की ऑनलाइन वाली शॉप। जब भी करनी हो शॉपिंग बिना झेले धूप और पसीना, जब भी करनी हो शॉपिंग बिना झेले धूप और पसीना, तो उठाओ फोन और हो जाओ तैयार। सुन रही हो ना मेरी बहना, सुन रही हो ना मेरी बहना।
राम, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज तो मैंने ऑफ लिया है। बॉस ने छुट्टी सैंक्शन कर दी? तुमने बात कब करी बॉस से? बात क्या करनी, मैंने तो बॉस को मेल भेज दिया और व्हाट्सएप भी कर दिया। पर तुमने ब्लू टिक चेक किए? हाँ, तभी तो इतना रिलैक्स हूँ। अब तुम जाओ ऑफिस और मैं घर में रिलैक्स करूँगा। जब भी जरूरी हो बातें पर हो समय का अभाव, जब भी जरूरी हो बातें पर हो समय का अभाव, ना घबराए, ई कम्युनिकेशन है ना जनाब, ई कम्युनिकेशन है ना जनाब। मैं परेशान 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 परेशान। अरे बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? मम्मी, मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया है जो कल ही सबमिट करना है, इसीलिए परेशान हूँ। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक प्रोजेक्ट ही तो है। फटाफट कंप्यूटर खोल एंड जस्ट गूगल इट। इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इंटरनेट से कुछ भी पढ़ो, आता हमेशा काम है। इंटरनेट से कुछ भी पढ़ो, आता हमेशा काम है। एकमात्र वो ही तो है जो देता मिनटों में ज्ञान है। पापा, आप हमें ऐसे ही डांटते रहते हो। मोबाइल और इंटरनेट कितनी फायदेमंद चीज है। अरे उस्ताद, सुन रहे हो? ये बच्चा क्या कह रहा है? अरे हाँ, लगता है हमसे गलती हो गई। हमने पिक्चर का आधा भाग ही दिखाया है। तो फिर अब क्या करें? करना क्या है, चलो दूसरा भाग भी दिखा देते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कितनी विचित्र विडंबना है। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप फंसता है और फिर बेचैन हो, न जगता है न सोता है, न जगता है न सोता है। सुमन, क्या कर रही हो? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? अरे मम्मी आ गई। ये क्या, फिर से मोबाइल? जब देखो बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आग लगे इस डब्बे को, दिन रात इसी में लगे रहती हो। जाओ जाकर पढ़ाई करो। मम्मी, बस एक वीडियो और। फिर से वीडियो? जाओ, बोला ना जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, कितनी देर से बुला रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं? तुम तो बस मोबाइल में ही लगी रहती हो। अभी अभी तो लिया था। अच्छा ये सब छोड़ो, छोटू कहाँ है? अंदर होगा, शायद पढ़ाई कर रहा होगा। अरे तू भी मोबाइल में लगा हुआ है, एग्जाम नहीं है? पापा, बस एक लेवल और पास करने दो। पहले एग्जाम तो पास कर ले। पर्पस था मोबाइल का कि दूर के लोगों को करीब लाए। पर्पस था मोबाइल का कि दूर के लोगों को करीब लाए। बाहर इंटरनेट तेरी लीला निराली, करीब के लोग भी नजर न आए। इंटरनेट ने उसको कर दिया है साइको, बैठती है उस पे दिन भर। इंटरनेट ने उसको कर दिया है साइको, बैठती है उस पे दिन भर। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुझे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था ना। ओ कम ऑन मॉम, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? लाओ अपना फोन दिखाओ। लो, हो गया। क्या हो गया? I just paid the bill. फोन पे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या मोबाइल का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या मोबाइल का, इनकम टैक्स हो या जीएसटी, जस्ट पे ऑनलाइन विद अ सिंगल क्लिक। इंटरनेट बैंकिंग का देखो कमाल, इंटरनेट बैंकिंग का देखो कमाल। मिनटों में हो जाता हर बिल का भुगतान, हर बिल का भुगतान। हाय, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, ये क्या हो गया? पापा पापा, क्या हुआ? फोन दिखाओ तुम अपना। क्या तुमने इससे ऑनलाइन पेमेंट करी थी? हाँ, इसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था। अरे पागल लड़की, देख तो लेती पेमेंट करने से पहले।
तुमने जिस साइट पे मेरी बैंक डिटेल्स भरी थी वो एक फ्रॉड साइट थी। मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, अब सिर्फ 10,000 बचे हुए हैं। हाय, लूट गया मैं, बर्बाद हो गया। अगर सोच समझकर ना किया इसका इस्तेमाल, अगर सोच समझकर ना किया इसका इस्तेमाल, तो इंटरनेट कर देगा तुमको मिनटों में कंगाल, मिनटों में कंगाल। हाय, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो मोबाइल चला रही थी, मैं तो रील्स बना रहा था। तुझको स्कूटी ना दिखी तो मैं क्या करूं? इनको स्कूटी ना दिखी तो मैं क्या करूं? अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे हट हट, पहले मुझे फोटो लेने दे। ब्रेकिंग न्यूज। अरे कैमरे का एंगल तो सेट कर। मुंह पे फोकस कर, मुंह पे। इंटरनेट के दलदल में फंसकर प्यारे, इंटरनेट के दलदल में फंसकर प्यारे, ना भूल जाना इस तरह तू ईमान, एक बार फिर से मानव बन जा रे मानव, हे इंसान। अरे कोई तो मदद करो, कोई तो उठाओ इससे। भाई साहब आप ही उठा दीजिए इसे। बहन जी आप ही उठा दीजिए इसे। नहीं, कोई नहीं आएगा इसे उठाने। बस सब बैठो घर पे और लाइक, डिसलाइक, हैप्पी, सैड का बटन प्रेस करो और अपनी ड्यूटी निभाओ। पर क्या हम सच में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? क्या हमारी पूरी लाइफ ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल, इंटरनेट, रील, शॉर्ट इसी में ही खत्म हो जाएगी? क्या हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, स्टडीज, स्पेशल मूवमेंट्स इग्नोर कर सही कर रहे हैं? क्या हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स हमारे रियल फ्रेंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं? इंटरनेट हमारे कामों को सरल बनाने के लिए है, ना ही हमें गुलाम बनाने के लिए है। क्या यही वो भविष्य है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर। आओ आओ हमारे साथ आओ, आओ आओ हमसे सीखो, आओ आओ सबको सिखाओ, आओ आओ हमारे साथ आओ। अरे बच्चों, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा पापा। और तुमने इससे क्या सीखा? यही कि मोबाइल और इंटरनेट के बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी है, इसलिए उसे हमें जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। वेरी गुड। आ गए आप लोग। चाचू चाचू। जीते रहो बेटा। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। अरे रोहन, तुम कब आए? अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए। वाव। और ये तुम्हारे लिए। वाव। और इनके लिए। हम मिलकर खेलेंगे। चलो अंदर चल के खेलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। वाव, टैंक। यह देखो मेरी गाड़ी। ज़ू। रोहन, तुम ये टीवी पे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कारगिल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन पापा ये कारगिल क्या होता है? बेटा, कारगिल की ना एक वॉर हुई थी। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ। एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों ही तरफ के हजारों सैनिक शहीद हो गए, कई घर उजड़ गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। मगर फिर भी इतना कुछ खोकर भी भारत ने यह युद्ध जीता। तभी तो तुम्हारे पापा को एक भारतीय सैनिक होने पे गर्व है। तो फिर मैं भी पापा आपकी तरह बड़ा होके एक फौजी बनूंगा। जरूर बनना बेटा। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों,
मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। लिपटे तिरंगे में जब उनको देखा बिखर मैं गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा। तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा। पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हाँ, करती हूं मैं आपसे वादा। कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूंगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फख्र से मैं कहूंगी। वह देखो मेरा यान, सबसे दूर तो मेरा ही गया है। अरे सबसे दूर मेरा गया है। अभी देखो मैं उड़ाकर दिखाता हूँ। सबसे दूर तो मेरा गया है। मेरा गया, मेरा गया। अरे चुप। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों,
लेकिन बेटा इसे यान नहीं जहाज कहते हैं। मम्मी फिर यान किसे कहते हैं? यान तो वो होता है जो अंतरिक्ष में जाता है, जैसे हमारा मंगलयान। अरे वही ना जो नवंबर 2013 में भारत ने अंतरिक्ष में भेजा था। वेरी गुड, हाँ वही वाला। आओ तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। मंगलम मिशन मंगलम, ओम मंगलम मिशन मंगलम, ओम मंगलम मिशन मंगलम। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। ओम मंगलम मिशन मंगलम। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1 बूम। दिल में मार्स है, क्योंकि दिल में मार्स है, अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है, दिल में मार्स है। ओम मंगलम मिशन मंगलम, स्पेस मंगलम, शटल मंगलम, पूर्ण मंगलम, स्वैग मंगलम, हैश मंगलम, टैग मंगलम, ड्रीम मंगलम, विजन मंगलम, काउंटडाउन इग्निशन मंगलम, ओम मंगलम मिशन मंगलम, टेलीस्कोप उड़ाए स्वाहा। अपने ब्रेन 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 की है कारस्तानी, हम तो ढूंढ 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 ले फायर में पानी, फायर में पानी। अपने देश 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 में सब कुछ मुमकिन है, वी डोंट नीड 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 नो मेहरबानी, नो मेहरबानी। थोड़े फेल 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 है, फिर भी पास है, फुल टू मूड 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 में हम बिंदास है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1 बूम। दिल में मार्स है, ओ दिल में मार्स है, अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है, क्योंकि दिल में। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ।
मान वो आके ज़मीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया 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 अरे सब जल्दी जल्दी आओ, मैंने 6 बजे की मूवी की टिकट बुक करी है। हाँ हाँ बस आ तो रहे हैं। ये हम मूवी देखने जा रहे हैं। सब 2 मिनट में बाहर आओ, नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल। अरे सब जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये घर को ही जंग का मैदान बना देगा। चाची चाची जल्दी करो, चाचा गुस्सा कर रहे हैं। हाँ चलो चलो चलो। मैं फिर दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट नहीं बना पाया। Hello world, I am Robo. Speed 1 terahertz. Memory 1 zettabyte. Boom boom Robo-da, Robo-da, Robo-da. Boom boom Robo-da, Robo-da, Robo-da. Robo-da, Robo-da. Zoom zoom Robo-da. 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 Activating. Robo-da. चिट्टी, तुझे तेरी ताकत का शायद अंदाजा नहीं है। तू इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसके लिए मुझे तेरे शरीर में कुछ प्रोग्राम्स फिट करने होंगे। चिट्टी, मैंने तुझे लोगों की मदद के लिए बनाया था, तबाही के लिए नहीं। चिट्टी, ये तेरी ताकत से जल रहा है।
तू बना है इस दुनिया पर राज करने के लिए। चिट्ठी पे कोई हुक्म नहीं चला सकता। चिट्टी, अगर मैं तुझे बना सकता हूँ तो तुझे मिटा भी सकता हूँ। मेरी अस्मित शक्तियों का फिर से दुरुपयोग ना हो, इसलिए मुझ में पाबंदी लगाना ही ठीक होगा। गुड बाय डॉक्टर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है हमारे देश में पहला रोबोट कब बना था? नहीं चाची। भारत में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट दिसंबर 2014 में बना था। अच्छा, तुम्हें पता है उसका नाम क्या था? हाँ चाचू, चिट्टी। नहीं नहीं, वो तो बस मूवी में था। वास्तव में उस रोबोट का नाम था मानव। बेटा, मानव यानी इंसान, तभी तो उस रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा गया है। लेकिन भारत की उपलब्धियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत आज न केवल रोबोटिक्स बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, शिक्षा हो, परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान हो या फिर मेडिकल साइंस, हर क्षेत्र में, जी हाँ हर क्षेत्र में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। आज दुनिया के सामने हम एक समर्थ आईटी पावर बनकर उभरे हैं। आज भारत विश्व में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारे भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने तक के इस सफर की झलक आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान,
5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। हिंदुस्तान, 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 मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। हिंदुस्तान, 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 मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया, और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते? Parents, kindly wait. The program is not yet over.
What a tremendous and engaging program. We can clearly see the efforts of our young dip sides. All our participants deserve a huge round of applause. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Patriotic songs fill each of us with lots of enthusiasm and pump the adrenaline in our veins. Many songs give us the goosebumps as their vividness sketches a picture on the canvas of our imagination. Let us hear our senior school choir create magic with their spectrum of melody. भारत
जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन, ठहर के बोले समय अमर है देश में। ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। तुझे नमामि, तुझे नमामि, तुझे नमामि, तुझे नमामि। सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पंथी थी। वैदिक युग में वेदों पे लेख संस्कृति जन्मी थी। सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी थी। चाणक्य नीति की जन्मभूमि नालंदा में विद्या बढ़ती थी। मैथिली और पंजाबी, मराठी, पहाड़ी, गुजराती, कश्मीरी से बंगाली, मल्लूदा, जूसंग, मद्रासी। अटल की माटी, सचिन की माटी, मैरी, साना, लता की माटी, ये है रहमान की माटी, शाहरुख और अमिताभ की माटी। माटी उस हर गुरु की जो विद्या देके बनाता काबिल। माटी उस नेता की जो लड़ता रहता हक के खातिर। माटी उस बाप की जो करवाता बेटे फौज में शामिल। माटी उस माँ की बेटा ना जिसका आया लड़के वापस। तुझे नमामि हो, तुझे नमामि हो। एक तेरा नाम है साजा, मन मेरी और बाजा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिन जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। ओ तुझ पे वारना 100 बारी जान में, तुझ पे वारना 100 बारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। तेरी आंखों में एक आंसू ना आने देंगे, दे देंगे जा। सजनाम सजनाम भले सजनाम, शस्य श्यामनाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माँ की जय कहना, भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझते हैं। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझते हैं। अपना जीना मरना अब तेरे नामे वतन करते हैं, तेरे नामे देश करते हैं। अरे देश बहुत से देखे हैं, भारत सा कोई गणतंत्र नहीं। देश बहुत से देखे हैं, भारत सा कोई गणतंत्र नहीं। भारत सा कोई राग नहीं, भारत सा कोई देश नहीं। भारत सा कोई राग नहीं, भारत सा कोई देश नहीं। मैं गया जहां भी, गया जहां बस तेरी याद थी, तेरी याद
मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, 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 माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम। Come on everybody, sing with us. वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। Dear parents, kindly wait as the students are busy in changing their clothes and will be handed over to you only after the national anthem. It's my honor to request our Pro Vice Chairman Sir, Mr. Vivek Agarwal, to adorn the stage and share his thoughts with all the parents and guests present for today's occasion. Please, sir. Good evening, everyone. Before I begin my speech, I think the chief guest of the day, Mr. Nilesh Anand Bharne ji, is here with us. Can we have a huge round of applause for him? Sir, can I please request you to come on the stage? We'll have a small facilitation for you. Truly, we all want to see our India rise higher in all fields. Dear parents, now is the right time to introduce and felicitate our chief guest for the day, Shri Nilesh Anand Bharne ji, who so graciously accepted to spare his precious time with us. I would like to request our principal ma'am to do the honors. Mr. Nilesh Anand Bharne, a 2005 batch IPS officer of Uttarakhand cadre, is a native of Nagpur. Sir served in almost all the districts of Uttarakhand. Sir joined Nagpur Police Force on deputation as DCP Special Branch in 2017. In the mid of 2018, Sir was appointed as DCP Zone 4. Later became DCP Crime and took over the charge as Additional Commissioner of Police Crime after being promoted as DIG. Additional Commissioner of Police Crime, Sir was awarded with a PhD degree by Raksha Shakti University, Ahmedabad in Forensic Psychology for brain mapping and polygraph. Sir is the first IPS rank officer to be awarded a PhD in Forensic Science. Some achievements of Sir are lecturer in various colleges of Nagpur, investigator in Central Statistical Organization. Sir has qualified NET, National Eligibility Test, and SET, State Eligibility Test. Sir has written Directory of Career Courses, Handbook of Investigations. Sir has also been rewarded with Saraniya Seva Samman Chinna 2013 for rescue, relief and rehabilitation works in disaster at Kedarnath in July 2013.
rescue and relief during flood at Nagpur in July 2018. He saved life of 39 school children of Adarsh Sanskar Vidyalay, Hudkeshwar, Nagpur. Sir, we feel extremely proud and honored to have you with us today. Dear parents, let's give him a huge round of applause. Sir, we would like to ask you to address the gathering. So it's been wonderful to be here amongst the youngsters. So it's annual day. So सारे पेरेंट्स बच्चे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ हुए हैं. कुछ तो विवेक जी ने मुझे भेजे भी थे कि आप to I so that I get motivated to come here. So sorry, I have been busy in some program. There's a very important program going on. So I'm busy there. पिछले 5 सालों में डीपीएस ने एक बेहतरीन जो है यहाँ एजुकेशनल क्लाइमेट दिया हल्द्वानी में. एक अच्छा स्वस्थ वातावरण, एक अच्छा एजुकेशन जिसमें क्वालिटी एजुकेशन में बच्चे जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस यहाँ कर रहे हैं. जो डीपीएस ने यहाँ जो एक एक्चुअल जो उनका मॉडल है डीपीएस का, पूरी कोशिश की है कि यहाँ सारी जो बेस्ट फैसिलिटीज़ है एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को यहाँ दे. और जो है पेरेंट्स काफ़ी उनका फीडबैक स्कूल के प्रति बहुत अच्छा है. स्कूल के यंग जो है वो आपके विवेक जी जो है काफ़ी खुद ध्यान देते हैं हर चीज़ों पे, खुद पूरा कंसर्न रहते हैं. मुझे बुलाने के लिए उन्होंने काफ़ी जो है वो उनका धन्यवाद देता हूँ कि जो है आप ने मुझे यहाँ बुलाया, पेरेंट्स के साथ बात करी. एक आध कभी हम लोग स्कूल हमारे जो पुलिस के प्रोग्राम्स होते हैं वैसे भी हम लोग कभी साइबर और इस पे भी हम लोग बच्चों का गाइडेंस करियर या इस विषय पर भी जो है स्कूल के साथ चर्चा रख सकते हैं. तो अभी मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट एंड आई गिव माई बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, जो सब मिलके एक टीम वर्क है, पूरी है एक टीम भावना से हम लोग जो है एक डीपीएस को हम लोग यहाँ चला रहे हैं. और मैं चाहता हूँ कि हमारा बगल का जो डीपीएस है रुद्रपुर, हम उनसे कहीं आगे रहे. हालांकि वहाँ भी मेरे अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बेस्ट परफॉर्म करें हम हमारे स्टूडेंट्स. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू द डीपीएस टीम. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for your kind words. Thank you so much, sir. A very good evening to all present here. Respected Chief Guest, sir, DIG Kumaon, Mr. Nilesh Anand Bharne ji, Chairman, Himalaya Education Society, Mr. Bhumesh Kumar, distinguished guest of honor, Mr. Shyam Agarwal, Mr. Bhagwan Sai ji, and all other members of the society. Principal, Delhi Public School, staff members, and my dear parents, a very, very warm good evening. I know it is a little chilly now, it's got a little late, but I think what we've witnessed here is simply fantabulous. It cannot be better. Let's have a huge round of applause for all the performances that we've seen. What you see on the stage is just a 3 to 3.5 hour of act, but what goes behind is about a month of preparation. The departments that are involved, that include right from the choreography to the dramatics to the dance, music. There's so many people working tirelessly
to give the program that it deserves. The VR team, can I have Lavi, Amrinder, and everyone over there? So those who are involved in the post-production works, Yogesh sir, the person who's choreographed everything, Principal ma'am who's led the team completely. So a huge round of applause once again for each and everyone. This is the 5th year of DPS, and today we have 1500 students and about 200 staff members. The family is only grown with every year. It's been a proud moment each and every time we have had this annual function. The first time we had it in the form of Arabian Nights. The second year we did Ali Baba. Third year was a COVID year, so nothing happened. Fourth year, that is last year, we did Krishna Leela, and this year we are there with the concept of India, which is celebrating 75 years of achievement. This is what our Prime Minister has also given the vision of celebrating 75 years of independence. So this is the concept that we wanted to work on, and I hope we've been successful in delivering what we wanted to do. Now, without taking much of your time, there's just a small announcement that I wish to make. With the permission of Chairman, Himalaya Education Society and Principal Ma'am, I feel very proud to announce that DPS Haldwani is opening another campus with the name of Delhi Public School Haldwani Juniors. And this campus will be located in Haldwani city at Nawabi Road. So yes, thanks to your support, your feedback, your expectations, which motivates us to do better. We are growing each day and we hope to do even better. Thank you once again. Have a lovely evening ahead and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Your words have been thought-provoking and motivating. Now it's time to facilitate the core team members. Mrs. Akriti. Mr. Ankit. Mrs. Arpita. Mrs. Aarti. Mr. Arjun. Mr. Anuj. I'm sorry for the mistake. Mrs. Dolly. Mrs. Geeta. Mrs. Gitanjali. Miss Lavi. Mrs. Mansi. Mrs. Neelima. Mrs. Sarika. Miss Neha. Miss Vatsala. Mrs. Vinita. Mr. Yogesh. All of them.
On behalf of the management and the staff of Delhi Public School Haldwani, I, Vatsala Pandey, take immense pride and to propose the vote of thanks to all our dignitaries, guests, the chief guest for the day, and the parents who have sat so patiently throughout the program and have motivated our children all through the day. Your presence has been deeply appreciated, and we hope to meet you all next year when we present another masterpiece theme and performance. I would like to take this opportunity to thank our staff members who have tirelessly worked behind the scene to make this program a success. Last but not the least, our members of the School Student Council and the volunteers who have worked in tandem to help maintain the discipline and smooth movement throughout the program. Thank you all as we bid adieu today with a new promise to meet next year. Thank you, and thank you once again. Dear parents, we will now be having the national anthem. Kindly rise for it. Dear parents, kindly collect your word from the assigned classes